हाँ जी, वेलकम बैक। आ गए हो ब्रेक से? ऑडियो वीडियो ओके जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस टेस्ट की डिस्कशन को जो लास्ट वीक आप लोगों ने दिया था 500 से 599 की सीरीज के ऊपर। एंड आई होप आप सब ने इस टेस्ट को दिया होगा और अपनी आंसर शीट आप अपने पास रखकर बैठे होंगे ताकि आप चेक कर सकें कि आपके कितने आंसर सही हैं और आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। The engagement partner of the audit team of High Inventory Limited assessed that inventory is material with respect to the audit of financial statement। इन्वेंट्री की बात हो रही है, इन्वेंट्री मटेरियल है। Upon inquiring with the management, EP identified that management performing an annual physical inventory count at all the warehouse where entities store and maintain its inventory. Moreover, management confirmed in its written representation that they will be performing a 100% physical count of the inventory for the current period. As a result, engagement partner decided not to perform any physical count of inventory as it will be a duplication. Moreover, he decided that a written representation from management stating inventory exists most appropriate physical condition में है, ये अपने आप में sufficient and appropriate audit evidence होगा to conclude inventory balance is free from any material misstatement. Considering the requirements of standard, evaluate whether the decision taken by the engagement partner is appropriate or not. बताइए जी, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? आंसर आया है बी 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 बी। चलो बी पढ़ते हैं। Applying the requirement of SA 501, decision taken by the engagement partner is not appropriate as when inventory is material, auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by performing various audit procedure. करेक्ट लग रहा है 2 नंबर, लेकिन बाकी के पॉइंट एक बार और पढ़िए और मुझे गलती बताइए क्या है। अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 501, ऑप्शन ए में गलती बतानी है आपने। अब इन गलतियों को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और एमसीक्यू में तो डेफिनेटली हमें हेल्प मिलती ही है। ए ऑप्शन की गलती। अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 501, decision taken by the engagement partner is considered appropriate as in a situation when inventory is material, written representation will be sufficient appropriate audit evidence. Written representation as per SA 580 कभी भी sufficient appropriate audit evidence की कैटेगरी में आता ही नहीं है। Applying the requirement of SA 580, decision taken by the engagement partner will be considered appropriate. ऊपर लिखा SA 501, यहां लिख दिया SA 580, बाकी सब चीजें सेम ही है, तो ये कभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। डिसीजन इज नॉट एप्रोप्रिएट एज पर SA 580 as a written representation does not provide necessary information
that auditor requires in connection with the audit of entity financial statement, hence cannot be considered as audit evidence. डी क्यों नहीं है आंसर, बताओ जरा, डी आंसर क्यों नहीं बन सकता? श्रुति कह रही है डी भी करेक्ट है बट इनकम्प्लीट है, डी में बहुत बड़ी गलती है। डी में लिखा हुआ है 580 के अकॉर्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस नहीं बनती, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं होती। ऑडिट एविडेंस तो होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस तो होते ही हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं होते, जहां पर गलती हो गई। तो एग्जैक्ट आंसर बी 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीए रिचर्ड practicing CA got assignment of Futura Private Limited for the financial year 22-23. While carrying out the audit, he obtained all the relevant appropriate audit evidence for the item related to statement of profit and loss. However, while auditing the balance sheet item, he left out obtaining appropriate audit evidence confirmations. From the outstanding account receivable amount, outstanding account receivables 100 lakh, जो कंटिन्यू हो रहा है as it is from the last year. On affirmation of the management, no receipt and further credit. He discussed this matter with his partner, who suggests him to exclude from the audit program the audit of account receivable on the understanding that it pertains to the preceding year already audited by predecessor auditor. उसने इसको एक्सक्लूड करने की सलाह दी, मैनेजमेंट ने उसको सलाह दी, बैलेंस 100 लाख कंटिन्यूज एज इट इज है, कोई रिसीट और फर्दर क्रेडिट नहीं है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए बताइए? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं, सीए रिचर्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर देयर व्यूज एंड एक्सप्रेशन and to perform appropriate procedures on closing balances of account receivable to ensure its appropriateness. ए में कहां गलती है? ए में कहां गलती है? आपने आंसर बी दिया, ए में कहां मिस्टेक है? मुझे तो ए सही लग रहा है, बी पढ़ते हैं पर। सीए रिचर्ड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म detailed procedure on the opening balance of account receivable in accordance with SA 510 as audit of prior period financial statement were not been performed by him. अच्छा, गलत। यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट कर रखी हो, तो क्या आप लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? बताओ जरा। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट कर रखी है, तो प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर क्या आप डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहेंगे? वाई आई विल। अब अपने बैलेंस को चेक करो ना, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, प्रायर पीरियड का क्लोजिंग क्यों चेक करते हो? नहीं आई बात समझ?
ये सिचुएशन है। 31 मार्च 22 को भी 1 करोड़ था, 31 मार्च 2023 को भी 1 करोड़ है। आप इस बैलेंस को चेक करना चाहोगे, इसकी ऑडिट की है एक्स ने, इसकी ऑडिट करनी है रिचर्ड ने। रिचर्ड को चेक करना चाहिए था ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डेबिट क्रेडिट इस अकाउंट में हुए या नहीं हुए। तो क्या वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर डिटेल्ड वेरिफिकेशन करें, जिसकी ऑडिट प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कर रखी है। आपको तो अपने बैलेंस को देखना है ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, क्योंकि जब लास्ट ईयर की ऑडिट हुई है तो आप तो इसका कैरी फॉरवर्ड चेक करो बस। करंट ईयर में 1 अप्रैल 2022 को क्या ये अमाउंट 100 लाख का 100 लाख ही आया है या नहीं आया। डिटेल्ड प्रोसीजर थोड़ी करोगे। डिटेल्ड प्रोसीजर तब होते हैं यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अनऑडिटेड और एक आइटम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ आई हुई है। तो यहां तो प्रायर पीरियड ऑडिटेड है, बी आंसर नहीं आएगा। ए किसने आंसर दिया था सही? आयुषी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, ए आंसर। सीए रिचर्ड में एक्सक्लूड फ्रॉम द ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि ये पिछले साल का है, ऑलरेडी ऑडिटेड है बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। आप अपने ईयर के क्लोजिंग को कैसे छोड़ दोगे? 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या डेबिट क्रेडिट है उनकी चेकिंग करनी चाहिए आपको। CA Richard is mandatorily required to obtain external confirmation from the trade debtor as per SA 505 as outstanding balance continued as it is from the last year। ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट होती है। दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3, XLR and company was appointed as auditor of XL Telecom Limited, company operating its business in telecom sector. As per spectrum allocation agreement with government, XL Telecom is required to pay certain percentage of its annual revenue as license fees. XL Limited paid license fees for the last 2 year। थर्ड ईयर में गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आती है दैट दे नीड टू पे एग्रीड परसेंटेज ऑन टोटल रेवेन्यू, नॉट ओनली ऑन कोर बिजनेस रेवेन्यू। मैटर डिस्प्यूटेड है, कोर्ट ऑफ लॉ में गया। एक्सेल टेलीकॉम ने प्रोविजन बनाया एस्टिमेटेड बिजनेस का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन एग्रीड परसेंटेज ऑन नॉन कोर बिजनेस रिसीट आल्सो। पहले गवर्नमेंट ने उनसे सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस की एक परसेंटेज ली, बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आ गया आपके यदि कोई दूसरे और बिजनेस भी हैं कोर बिजनेस के अलावा, उसकी भी परसेंटेज आपको देनी पड़ेगी। मैटर कोर्ट में है, लेकिन एक्सेल टेलीकॉम ने नॉन कोर बिजनेस की एक परसेंटेज का एस्टिमेटेड प्रोविजन बना दिया। बहुत अच्छा किया। द प्रोविजन वाज ऑफ सच ह्यूज अमाउंट कि इनका P&L लॉस में चला गया ड्यू टू द प्रोविजन। ऑडिटर इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग फॉर इवेल्युएशन ऑफ दिस प्रोविजन। नंबर 1, हाउ मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड alternate assumptions, why management has rejected them, how management has otherwise addressed estimation uncertainty in making the account estimate। क्या सिग्निफिकेंट अजम्पशन जिन पर ये एस्टिमेट बनाया गया क्या वो रीजनेबल है? वेयर रेलिवेंट टू रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशन यूज्ड बाय द मैनेजमेंट और एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ FRF, मैनेजमेंट इंटेंशन उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन है एंड इट्स एबिलिटी टू डू सो। Information regarding the effectiveness of management prior period estimation process
from which auditor can judge the likely effectiveness of management current process. Which of the following is to be considered while evaluating such accounting estimate? बताइए जी, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्या आंसर दोगे इसका? इन चारों में से कौन से पॉइंट सही हैं? 1, 2 एंड 4। श्रुति ने कहा 1, 2 एंड 4। गलत। गिनी ए, आयुषी ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? क्या ये केस हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का है? जी हां, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बिकॉज मैटर डिस्प्यूटेड है, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चला गया है और नॉन कोर बिजनेस की लाइसेंस फीस मांगी जा रही है। नॉन कोर बिजनेस की, पता नहीं लिटिगेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के केस में आपकी ये 3 प्रोसीजरल एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई एक्टिविटी, श्रुति बताएं बेटा, पहले कभी हुई थी? क्या पास्ट में इस तरीके की चीजें कभी हुई थी? नहीं। जब पास्ट में ऐसी चीजों के एस्टिमेट बने ही नहीं, तो क्या आपको प्रायर पीरियड के एस्टिमेशन प्रोसेस को देखना चाहिए इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड? व्हाट इज द रिव्यू ऑफ, व्हाट इज द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ प्रायर पीरियड? इनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज ये पहली बार इस तरीके का एस्टिमेट कंपनी ने बनाया है एंड हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज आर देयर। तो ए पॉइंट के हैं 2 नंबर। जहां पर भी 4 आ गया वहां हो गया गलत। नेक्स्ट, Starbucks is a company engaged in the manufacture of auto spare parts. Mahindra and Associate are the auditor. During the course of audit, Mahindra noticed that company had a major customer, Korean auto store from South Korea. Owing to certain misunderstanding in between Starbucks and Korean auto store, demand from Korean auto store ended for an unforeseeable time period. When discussed with the management, CA Mahinder was told that company is in the process of identifying new customers for their products. Mahinder understand that though use of going concern is appropriate, लेकिन एक material uncertainty exist करती है as to identification of new customer. This fact is duly reflected in the financial statement. कैसे रिपोर्ट करना चाहिए बताओ? क्या एक गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट है? अरे जवाब भी आ गई सबके। ए देखो सर, ए देखें, चलो। अनमोडिफाइड ओपिनियन बिल्कुल सही। सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग MURG बिल्कुल सही। टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही। State the events and condition that indicate a uncertainty that may cast doubt on the entity ability. एक करेक्ट आंसर। बी में क्या गलती है? क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दूंगा। सी में क्या गलती है? एडवर्स ओपिनियन, किस बात की? अनमोडिफाइड ओपिनियन, KAM नहीं देंगे। एक करेक्ट आंसर है, 2 नंबर इसी के हैं। Chintamani Limited appointed Chintan and Money as statutory auditor for financial year 22-23. Chintan and Money की different opinion है on audit approach to be adopted for audit of Chintamani Limited. Money is of the opinion that 100% checking is not required and they can rely on audit sampling technique that provide them a reasonable basis. Money बिल्कुल सही है। Chintan, whether the use of audit sampling provide a reasonable basis for conclusion, ये भी सही है।
अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांस, यदि सैंपलिंग एक रीजनेबल बेस प्रोवाइड नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? तो हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करिए मिस स्टेटमेंट को, या फिर हम अपने प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को चेंज करते हैं? जवाब ए। Request management to investigate the misstatement that have been identified, potential for further misstatement, and to make necessary adjustment or tailor the NTE. B. खाली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर आप बात करें? नो। मैनेजमेंट को कहिए मिस स्टेटमेंट ठीक कर दें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लें और रिक्वेस्ट देम टू इंक्वायर फॉर पोटेंशियल फॉर फर्दर मिस स्टेटमेंट। बाकी के प्रोसीजर, दूसरे प्रोसीजर की एडजस्टमेंट, दूसरे प्रोसीजर की नेचर चेंज, परफॉर्म 100% चेकिंग। नो, ए आंसर। अब जरा जल्दी से बताओ 10 में से 10 किसके आए? एक तो शायद सभी का गलत हो ही गया होगा, कोई ना कोई। आए हैं किसी के 10 आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 10? एनीवन? नहीं, सब साइलेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा आयुषी, मेरे आए हैं 10 आउट ऑफ 10, गिन्नी के 8 और एक सेकेंड, झूठ बोल रहे हो तुम, स्क्रीन भी भाग रही है, स्क्रीन कह रही है नहीं 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। PRSH and company is the statutory auditor to Make My Journey Limited. The company is in the business of tour and travel. Annual turnover 2000 करोड़ की है, प्रॉफिट 190 करोड़ के हैं। During the planning meeting of the management and the auditor, it was discussed management need to provide WR to the auditor for the preparation of financial statement and completeness of the information provided to the auditor. At the time of the closure of audit, there was some confusion as to the requirement of WR. Management argue representation need not be written, it can be verbal, which has been provided to the audit team. ऑडिटर ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया एंड रिप्रेजेंटेशन जो वर्बल डिस्कशंस पर थी उनको डॉक्यूमेंट कर लिया। ऑडिटर एक्सप्लेन this is mandatory to obtain a written representation as per SA 580. However, still some confusion remain regarding the date and period. आपको डेट एंड पीरियड के ऊपर अपना आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द रिटन रिप्रेजेंटेशन। डेट क्या होनी चाहिए? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। What should be the date of audit report? Before or after? Before. And should be as near to the date of audit report as possible. What should be the period covered by? All period in relation to which financial statements are being prepared and audited by the auditor. इसका आंसर दिखा दूं आपको। ये इसका आंसर है और एज पर SA 580 सबसे पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा गया है। रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिटर ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ऑडिटर रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड before the date of the written representation. Therefore, because the auditor is concerned with the events occurring up to the date of auditor report that may require adjustment or disclosure in the financial statement, audit report shall be dated as near as practicable but not after the date of the auditor report.
In some circumstances, it may be appropriate for the auditor to obtain a written representation about a specific assertion. When this is the case, it may be necessary to request an updated written representation. Written representation shall be for all the periods because management needs to reaffirm that WR it previously made with respect to prior period remain appropriate. Auditor and management may agree to a form of written representation that updated written representation relating to prior period by addressing क्या पुरानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज हुआ है क्या? सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि करंट मैनेजमेंट वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल द पीरियड रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. सच पर्सन में असर्ट हम आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन अ रिलेशन टू सर्टेन मैटर कैन नॉट प्रोवाइड because we were not in place during that period. This fact does not diminish such person responsibilities and accordingly requirement for auditor to request the written representation from this person for the whole period still apply. अब ये क्वेश्चन है 5 नंबर का. अब आपको अपने आप इस क्वेश्चन के मार्क्स लेने हैं. क्या आपको लगता है आपने नंबर 1 ये पॉइंट कवर अप किया है? आपने अपडेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात की, ऑल पीरियड को कवर अप किया, प्रायर पीरियड का रेफरेंसेस देख करके, और मैनेजमेंट ने यदि कुछ मैटर पर रिपोर्ट नहीं दी तो उससे मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो उससे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां कम नहीं होगी और ऑडिट की रिक्वायरमेंट स्टिल रिमेन्स. बिल्कुल सेम आंसर दिया है. अच्छा, यदि सेम आंसर दिया है तो आप 4 नंबर ले लीजिए. बट अदरवाइज जनरली आंसर में कमियां होती ही होती हैं. तो इसमें जो एक एवरेज चेकिंग आएगी वो 2 या 3 नंबर की आएगी. बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है 4 नंबर. ये चीजें नजर नहीं आ रही, आधी अधूरी हैं, 0. कुछ बातें क्लियरली नजर आ रही हैं. ये डेट एज नियर एज प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द पीरियड. ये 2 मेन बातें, ये 2 कवर हो गई, 2 नंबर. लास्ट पॉइंट नहीं लिखा, लास्ट पॉइंट नहीं लिखा है तो ये पहले 3 पॉइंट लिखे हैं, देन 2 या 3. डिपेंड करता है एग्जामिनर किस थॉट के साथ पेपर चेक कर रहा है. थोड़ा सा रिस्क रहता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की चेकिंग में, तो 2 या 3 स्ट्रिक्ट मार्किंग करना चाहो 2 ले लो, थोड़ी सी लूज मार्किंग करना चाहो 3 ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Auditor has a responsibility to perform the audit procedure to identify, assess and respond to risk of material misstatement arising from the entity failure to appropriately account for related party transactions and the balances. Auditor should maintain alertness for related party information while reviewing the records and document. He may inspect the record or document that may provide information. Explain with examples. कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ये 12 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं एज पर SA 550, जिनसे ऑडिटर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया ले सकता है. हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट, एनी 10 पॉइंट. इनके अलावा कोई और पॉइंट लिखा है, बेशक वो सही भी है, उसके नंबर मत दीजिए. थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग करिए, ये मानकर कि जो पेपर चेकर है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही चेक कर रहा है. तो आपको क्या काम करना है, ये जो 12 पॉइंट लिखे हैं चेक करो.
इनकम टैक्स रिटर्न लिखा है क्या? इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज लिखा है क्या? शेयर होल्डर रजिस्टर मेंशन है? स्टेटमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी मेंशन है? रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद द की मैनेजमेंट, significant contracts and agreement not in the ordinary course of business, specific invoice and correspondence from the professional advisor, life insurance policies, contracts renegotiated, internal auditor report, document associated with entity filing with the security regulator. इन 12 में से 10 पॉइंट कोई भी, एनी 10 पॉइंट, हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट ले लीजिए। Next, auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding the financial statement after the date of auditor report. However, when after the date of audit report but before the date the financial statements are issued, a fact become known to the auditor, had it been known earlier, may cause the auditor to amend the auditor report. Explain auditor obligation. पहला पैरा जिसके अंदर ये 3 पॉइंट आएंगे, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, डिटरमिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है, एंड इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the reference of SA 560 subsequent events. क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था ना स्टैंडर्ड का नाम ना, ये कीवर्ड है। दो नंबर इसके। एज पर एसए 560 यदि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करती है, ऑडिटर शैल एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक नंबर इसका। It is also provided in SA 560 when law, regulation or FRF does not prohibit the management from restricting the amendment to the financial statement to the effect of significant event. Auditor is permitted to restrict the audit procedure on subsequent events only and amend the audit report to include an additional date restricted to that amendment and provide a new or amended audit report that include EOM or other matter para. दो नंबर इसके। तो अब इस बेसिस पर आपको पेपर का थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनके आंसर किस तरीके से आपको देने हैं एंड हाउ द पेपर्स आर बीइंग चेक्ड। इस क्वेश्चन में भी मुझे लगता है आप 3 या 4 नंबर ही मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, वैसे एवरेज 2 या 3 की ही आ रही होगी, एवरेज 2 या 3 नंबर की ही आ रही होगी इस क्वेश्चन में भी। तो अब जरा बताएं टोटल 25 में से कितने नंबर आपके आए हैं? कोई नंबर नहीं बता रहा। थर्टीन, 20 बहुत अच्छा स्कोर है। 18, 17, 16 और इधर 14, 20 तो बड़ा अच्छा स्कोर है। चलो यदि 20 स्कोर कर पा रहे हो बहुत अच्छा स्कोर है, इंप्रूव करिएगा। और जो बिलो 20 है, 16 है, 13 है, 18 है, 15, पहला टेस्ट है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट
इंप्रूव करिएगा इन स्कोर्स को जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक ला सकते हो, और एवरी वीक जो टेस्ट हो उसको दीजिएगा। उस टेस्ट के बेसिस पर ही 5-10% नंबर, तो यदि आपने रेगुलरिटी रखी टेस्ट की तो 5-10% मार्क्स तो आपके इन टेस्ट की रेगुलरिटी से बढ़ जाएंगे। इस चीज का भरोसा रखिएगा। जो बात बोल रहा हूं ऐसे नहीं बोल रहा। यदि आपने रेगुलरली टेस्ट को दिया तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा आपका, और एक रिटन प्रैक्टिस जो आप कर पा रहे हैं उससे 5-10% के मार्क्स आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये भी मेंशन होगा कि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रोंग है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रोंग है मतलब नहीं, ये तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ऑडिटर की जनरली कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इन जनरल नो ऑब्लिगेशन। ठीक है ये लाइन बेटा। कल टेस्ट कब मिलेगा? कल टेस्ट वही 12 से 1 बजे के अराउंड। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है जो कल होना है, उस टेस्ट के 2 टॉपिक हैं, ऑडिट रिपोर्ट और वो एसए की सीरीज 700 वाली प्लस कारो। जनरल नहीं लिखा, इतना तो कई बार रह जाता है, इतना माइन्यूटली मत जाओ बेटा। क्वेश्चन 1 में अगर डी में कैन होता तो भी कंप्लीट आंसर है। नहीं, तब भी कंप्लीट नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर तो हमें परफॉर्म करने ही पड़ेंगे ना बेटा। तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई, और कल आपका जो टेस्ट है वो ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो का है, और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक इस टेस्ट की डिस्कशन के साथ ही। नेक्स्ट लाइव क्लास मंडे मैं ग्रुप में इंफॉर्म कर दूंगा, मैं ग्रुप में आपको इंफॉर्म कर दूंगा। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट, ये 3 चैप्टर की क्लासेस आपको बाय मंडे अवेलेबल हो जाएंगी, और नेक्स्ट लाइव क्लास मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता हूं। ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करिएगा, ये टेस्ट ही आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएंगे ऑडिट के अंदर। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।